News Today Friday night special coming to you from Udaipur, where we are tracking the big elections of Rajasthan. We'll come to all our special newsmakers today. We have Ashok Gehlot, Chief Minister, and Priyanka Gandhi Vadra, the Congress's star campaigner, joining us on the show. Welcome to this News Today special, where we are coming to you from the lovely lake city of Udaipur, where we are tracking the battle for Rajasthan on a day when the 2023 elections have truly taken off, because voting took place today in two major states. Madhya Pradesh, 230 constituencies, and in Chhattisgarh for 70 of the 90 constituencies. So both these big states in the center of India have voted today, and a decent turnout. 71% by 5 p.m. in Madhya Pradesh and 67% voter turnout in Chhattisgarh. Remember, in Chhattisgarh, it's the Congress which is in power under Bhupesh Baghel. In Madhya Pradesh, it is Shivraj Singh Chauhan hoping to become Chief Minister for yet another time. Lots of major figures had their fates decided today. From the Congress, the likes of Kamal Nath; from the BJP in Chhattisgarh, Dr. Raman Singh; Shivraj Singh Chauhan himself here in Madhya Pradesh, and in Chhattisgarh, Bhupesh Baghel. So there was plenty to look at in these two major states that have voted today. Now the battle shifts to Rajasthan, because on the 25th, in 8 days from now, Rajasthan will go to the polls. And this is a high-stake election. Remember, governments have changed every 5 years in Rajasthan for the last 25 years. Will 2023 be any different? Chief Minister Ashok Gehlot is a three-time Chief Minister, and he's hoping to break that 5-year jinx. I caught up with him as he campaigned and traveled from Jaipur to here in Udaipur, and we raised a range of questions with him, from corruption to job paper leaks to the question of his welfare model and his 7 guarantees that he's offering, relations with Sachin Pilot, with the Gandhi family, and much more. This is Ashok Gehlot Unplugged. As he claims and challenges, he's ready to take his Rajasthan model and debate it with the Modi model in Delhi, and says that if the Prime Minister believes that his government is hand in glove with terrorists, then why hasn't the centre dismissed him? Lots to talk about. Listen in to our newsmaker today, Ashok Gehlot, Rajasthan's Chief Minister. Namaskar, hello and welcome to this आज तक इंडिया टुडे स्पेशल प्रोग्राम। चुनावी मौसम है, और चुनावी मौसम में हमारे साथ एक न्यूज मेकर है, राजस्थान के मुख्यमंत्री, कांग्रेस के नेता अशोक गहलोत जी। हम उनके साथ जा रहे हैं उनके जहाज में, यहां से उदयपुर, जयपुर से उदयपुर। अशोक जी, चुनाव का मौसम, और क्या आप मानते हैं कि पूरी तरह से टक्कर है राजस्थान में इस बार, कांग्रेस बनाम बीजेपी? यहाँ का एक तरह से रिवाज रहा है कि हर 5 साल सरकार बदलती है, और इतिहास देखा जाए तो कहेंगे कि अब बीजेपी की बारी है। 98 से 25 साल सरकारें बदलती रही है, किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, मैं अभी केरला गया था जी। केरला में 70 साल से ही होता है, 5 साल एक बार कांग्रेस गठबंधन, एक बार कम्युनिस्ट गठबंधन। इस बार जब मैं गया तो मुझे कहा इसका रिवाज बदलेगा, सरकार रिपीट होगी कम्युनिस्ट पार्टी में। क्यों? इसलिए कि अच्छा काम किया कोरोना के अंदर। तो मैंने कहा कोरोना में सरकार रिपीट हो भी गई, तो मैंने कहा हमने तो जो काम किया कोरोना के अंदर, बेरोना मॉडल हमारा दुनिया में पहुंच गया, ट्रांसफर मैनेजमेंट, कोई भूखा नहीं सोया, इंश्योर किया सबको हम लोगों ने इमदाद। तो क्यों नहीं यहाँ पर उसके अलावा इतने काम हुए हैं। 25 लाख का बीमा हो गया, यहाँ पर ओपीएस लागू हो गया, सोशल सिक्योरिटी में हमने 30 स्कीमें दी है, कोई सोच नहीं सकता। महंगे ना शिविर चलाया हम लोगों ने, 7 गारंटी दी है। तो आप कह रहे हैं अपने सोशल सिक्योरिटी वेलफेयर स्कीम्स पर, आपके काम पर आप तैयार हैं ये चुनाव लड़ने के लिए?
कि आप कह रहे हैं कि मुझे री-इलेक्ट करिए मेरे काम पर। भाई जब केरला में खाली कोरोना के मैनेजमेंट की सरकार रिपीट हो सकती है तो हमारे यहाँ तो निश्चित तौर से रिपीट होगी। क्योंकि हमने देखा है पोल्स में अशोक गहलोत जी की लोकप्रियता है, आपको लोग पसंद करते हैं, लेकिन आपके एमएलएस के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। कहते हैं एमएलएस जो हैं उन्होंने उतना काम नहीं किया है और आपने बहुत कम एमएलएस की टिकट काटे, केवल 17। इसलिए लोग कह रहे हैं एमएलएस के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी में अशोक गहलोत फिर से फंस जाएंगे। देखिए काम जो है बहुत शानदार हुआ है, तो एमएलए थ्रू हुआ है। जो जनता की मांग थी वहाँ के लोगों की, वो मांगों को लेके आए, एमएलए मेरे पास आए होंगे, मैंने वो काम किए हैं। तो ये खाली थोड़ा एक तो ज्यादा प्रचार प्रसार ज्यादा कर दिया परसेप्शन के अंदर भी कि एमएलए के खिलाफ में बहुत भयंकर माहौल है। हाँ कई जगह होगा, कई जगह ऑप्शन भी नहीं होता है। तो आज ये चुनाव तो ये है, मैं कह रहा हूँ चुनाव आप वोट मुझे दीजिए आप तो, क्योंकि हमने सरकार शानदार चलाई है। वादा करते हैं एक मौका मिलेगा और इसी मजबूत करेंगे हम लोग। तो आप अपने नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि जहां भी जाता हूं अशोक गहलोत के नाम कांग्रेस लड़ रही है, वहां भाजपा नरेंद्र मोदी जी के नाम पर लड़ रही है और मोदी जी भी लोकप्रिय है, मोदी जी की भी लोकप्रियता है राजस्थान में। तो क्या ये चुनाव अशोक गहलोत बनाम नरेंद्र मोदी बन गया है? ये वो बनाना चाहते हैं मोदी जी, बीजेपी बनाना चाहती है। हाँ, पर हमने तो हमारे राहुल गांधी जी भी आ रहे हैं, खड़गे साहब भी आ रहे हैं, प्रियंका जी भी आ रही है, सबका कैंपेन बहुत शानदार हो रहा है। 12 मीटिंग हो रही है यहाँ पर, हमारे यहाँ पर एक बार आ चुके हैं खड़गे साहब भी, राहुल जी भी आ चुके हैं, प्रियंका जी 3 बार आ चुकी हैं। हमारा हाईकमान और कांग्रेस उसकी लीडरशिप में चुनाव लड़ा जाएगा। पर क्योंकि मेरे बीजेपी तो मोदी जी के नाम पर लड़ेगी और मोदी जी जैसे मैंने कहा वो देश के नंबर 1 नेता माने जाते हैं और वो राजस्थान उन्होंने आकर आपको एक तरह से टक्कर दी है। तो क्या आप मानते हैं गहलोत बनाम मोदी है या नहीं? ये होना नहीं चाहिए। देखिए मोदी जी जो है, क्या चुनाव के बाद में मोदी जी आके यहाँ सड़कें बनाएंगे, स्कूल खोलेंगे, कॉलेज खोलेंगे, तहसील खोलेंगे? क्या काम करेंगे वहाँ करके? खाली अपने नाम के वोट मांगना, ये गुमराह करना पब्लिक को। क्योंकि बीजेपी ने 2-3 आरोप, हम उपलब्धियों पर आएंगे, पहले जो आरोप बीजेपी लगाती है, पहला भ्रष्टाचार। बार बार मोदी जी आते हैं, लाल डायरी का जिक्र करते हैं। आपके जो पुराने मंत्री राजेंद्र गुड्डा ने लाल डायरी में कहा कि हम गहलोत जी की सरकार के सभी जो कारनामे हैं उनको उजागर करेंगे, करप्शन कैसे हुआ, भ्रष्टाचार हुआ है। और मोदी जी यही कहते हैं कि ईडी जो है वो अब राजस्थान में हर एक मंत्री के करप्शन को एक्सपोज कर रही है। एक मजाक है ये। अगर कोई लाल डायरी है, कोई नहीं है लाल डायरी, कोई डायरी नहीं है तो आ रहे हैं, पेपर में आ रहे हैं, लाल डायरी रंग आ रहा है, लाल डायरी की बात आ रही है, जुमला आ रहा है। ये सब गृह मंत्रालय भारत सरकार में वहाँ बना ये पूरी स्कीम। और उस मंत्री को जब मणिपुर में हिंसा हो रही थी, गृह युद्ध हो रहा था, डायल्यूट करने के लिए असेंबली में बुलवाया गया मंत्री जी से, पार्लियामेंट एडजॉर्न हो रही थी तब मैंने उनको बर्खास्त किया। वही लाल डायरी की बात उठ खड़ी हुई कि 4 दिन बाद पीएम आएंगे राजस्थान में तो हम इश्यू बनाएंगे लाल डायरी, लाल डायरी, लाल डायरी। आप कह रहे हैं लाल डायरी का इश्यू होम मिनिस्ट्री ने बनवाया, गृह मंत्री ने लाल डायरी बनवाई, डायरी नहीं है, कोई डायरी नहीं है। आप इस पर चैलेंज दे रहे हैं कि डायरी नहीं है? कोई नाम है, कितनी पैसे किसको दिए, ऐसा कुछ नहीं है? कोई मेरी जानकारी में डायरी है ही नहीं कभी। और ये भ्रष्टाचार का मुद्दा लेकर प्रधानमंत्री एक और बात पर आते हैं। बताइए, अगर लाल डायरी में करप्शन है तो ईडी छुटमुट करने कार्य क्यों करती है? सीधा उनको लाल डायरी पे काम करना चाहिए, लाल डायरी को लेकर मुकदमा दर्ज करना चाहिए। नहीं, ईडी अब तो आ रही है राजस्थान, आपके बेटे को इंटरोगेट किया, दोतासरा आपके राजस्थान कांग्रेस प्रेसिडेंट है, उनको इंटरोगेट कर रही है और कह रही है और लोगों के नाम आएंगे। तो ईडी लगातार राजस्थान में आकर आपके मंत्रियों, आपके परिवार पर क्वेश्चन लगा रही है कि भ्रष्टाचार बना है। तो कोई दम है नहीं, मतलब हमारा 1 रुपया भी कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, ईडी मुकदमा दर्ज क्यों नहीं करती लाल डायरी लेकर के? क्यों नहीं? जब उसमें नाम है, अगर आरोप है, तो क्यों नहीं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होते हैं? इसके साथ साथ प्रधानमंत्री आकर कहते हैं पेपर लीक, और ये तो मामला गंभीर है। 12 पेपर लीक हुए हैं
2018 से, और पेपर और एग्जामिनेशन रद्द हुई। ये बहुत बड़ा मामला है, युवाओं का मामला है। यहाँ बेरोजगारी है, वहाँ पेपर लीक होते हैं और एग्जाम रद्द होती है। क्या आप मानते हैं ये आपके सरकार की बड़ी कमजोरी रही है जो बीजेपी पूरी तरह से फायदा उठा रही है? देखिए, पूरे देश के अंदर मैं नहीं कहता है वास्तव में पेपर लीक होना अनफॉर्चुनेट है, परंतु गुजरात के अंदर, यूपी के अंदर, बिहार के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, जुडिशरी के अंदर और आर्मी के अंदर पेपर लीक हुए हैं। हमने कम से कम कार्रवाई करी है, लोगों को जेल में डाल दिया, उन्हें मकानों में बुलडोजर चला दिया और कानून पास कर दिया आजीवन कारावास का। नहीं, पर आपकी के जो अध्यक्ष है, राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष दोतासरा, उन पर कार्रवाई हो रही है कि ईडी कह रहा है उन्हीं के थ्रू ये पेपर लीक हुए, पैसा बनाया गया। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, ये गलत है सर। बिल्कुल गलत है। 12 पेपर अब उनके बेटे अब उनके बेटे का नाम मानना उन्होंने, कोई उनके खिलाफ आरोप नहीं। अनफॉर्चुनेट है, इस प्रकार से कॉन्स्पिरेसी करके किसी का नाम बदनाम करो, इससे बड़ा अनफॉर्चुनेट क्या हो सकता है। पर अगर आपकी सरकार आई तो क्या आप गारंटी दे सकते हैं कि इसके बाद कोई पेपर लीक नहीं होगा? अभी भी आजीवन कारावास हमने कानून बनाया है, उसके बाद में कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। तो और मुद्दा उठता है विमेन सेफ्टी का। बीजेपी कहती है महिलाओं की सुरक्षा को लेकर अशोक गहलोत की सरकार कमजोर रही है। क्या आप मानते हैं कि सरकार कमजोर रही है? बलात्कार के वो फिगर देते हैं 17 से 18 केसेस पर डे, ये उन्होंने सार्वजनिक किया और कहा एनसीआरबी की डेटा देखिए, राजस्थान इज इन टॉप 5 व्हेन इट कम्स टू अट्रॉसिटीज अगेंस्ट विमेन। वहाँ झूठ बोलते हैं, इक्का दुक्का घटनाएं समय को हो रही है, हुई है। अभी प्रधानमंत्री खुद के लोकसभा क्षेत्र के अंदर, बीएचक्यू के अंदर, बनारस यूनिवर्सिटी के अंदर लड़के गए, लड़की को ले गए एक तरफ, कपड़े उतार दिए, उसके छेड़छाड़ करी। पर ये ऐसी घटना तो होती नहीं है, कई जगह पर बहुत ही कंडेम करने योग्य घटना होती है, पर छुटपुट घटना सब जगह हुई है। पर जहाँ से करप्शन की बात ये करते हैं, शायद इनको मालूम होना चाहिए कि हिंदुस्तान भर के अंदर सबसे अधिक कोई छापे पड़े हैं एसीबी के तो राजस्थान पड़े हैं। यानी करप्शन है, यानी खास करके अफसरों में है। वही मैं कह रहा हूँ आपको, अगर छापे नहीं डालते हम करप्शन नहीं होता। छापे डाले हम लोगों ने, जीरो टॉलरेंस रखी, तो क्या करप्शन इतने छापे पड़ रहे हैं? इसका मतलब छापा डालना नहीं चाहिए था, तो लगता है करप्शन ही नहीं है इसका मतलब। एक और आरोप जो लगता है वो है माइनॉरिटी अपीसमेंट। प्रधानमंत्री, हम उदयपुर जा रहे हैं, यहाँ उन्होंने अपने पहले रैली में कहा था कांग्रेस आएगी तो आतंकवाद को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कन्हैया लाल का उदाहरण दिया था कि 2 कट्टरवादी मुसलमानों ने उसको मारा था लास्ट ईयर जून में, और सरकार, वो आपकी सरकार से पूछ रहे हैं, आप तुष्टीकरण कर रहे हैं मुस्लिम्स को माइनॉरिटी अपीसमेंट करते हैं। ये देखो, ये मारने वाले लोग थे, और इन्होंने जो मारने वालों ने, ये बीजेपी के संबंधित लोग हैं, और बीजेपी ने इनको छुड़ाया, थानों से छुड़ाया इनको, इनका स्वागत किया जो भी हज करके आए। तो इस प्रकार के मैं आपको बता रहा हूँ, जो फॉरवर्ड करूंगा आपको मैं भी। आप कह रहे हैं जिन्होंने कन्हैया लाल को मारा था उनका बीजेपी के साथ संबंध है? बिल्कुल। पर उनका कहना है कि आपने ठोस कार्रवाई कई ऐसे उदाहरण दिए हैं उन्होंने कि एक तो सांप्रदायिक तनाव बढ़ा है और मुसलमानों को आपने बचाने की कोशिश की है। ये किस तरह से आप देखते हैं? ये क्या हिंदू मुस्लिम की राजनीति हो रही है कि नहीं राजस्थान में? ये तो बेहुदा बातें होती है, मैं क्या जवाब दूं इनका। इतना मैं कह सकता हूँ, ये लोग जो थे मारने वाले, ये बीजेपी के जो कुनबा बना उन्हीं से संबंधित लोग थे। इनका जहाँ तक मुझे ख्याल है, इनका स्वागत किया गया जब ये हज वगैरह आए थे। नंबर 2, इनको कोई दूसरे मुकदमे में अरेस्ट कर लिया पुलिस ने, छुड़ाने वाले बीजेपी के नेता थे। नंबर 3, नंबर 4, इतनी बड़ी संगीन घटना हो गई, दंगे भड़क सकते थे। मैंने मेरे टूर प्रोग्राम कैंसिल किए, आया उदयपुर के घर गया, ये मोहल्ले में गया, चीफ सेक्रेटरी गई, हमारे डीजी पुलिस गए, और हमने सांत्वना उनको दी थी। 2 घंटे पकड़ लिए हम लोगों ने, मुझे 2 घंटे पकड़ लिए, और उसी रात केस ले लिया एनआईए ने। मैं पूछना चाहता हूँ कि एनआईए ने केस ले लिया, कोई बात नहीं, हमने इसलिए एतराज नहीं किया, हो सकता है इसमें अंतर्राष्ट्रीय एंगल हो, परंतु आज चुनाव आगे है, तब तक कोई बता नहीं रहा नहीं कि कार्रवाई क्या की। इसका मतलब जानबूझ के इसको लंबा खींच रहे हैं, जिससे कि चुनाव के मौके पर हम इसको कैच कर सकें,
सांप्रदायिक बात करके। तो एक हिंदू वोट बैंक नहीं है, आप नहीं समझते बीजेपी एक हिंदू वोट बैंक बना रहा है राजस्थान में? देखिए, हम उनसे बड़े हिंदू हैं। हम 1 लाख लोगों को तीर्थ यात्रा करवा रहे हैं। हम गायों के लिए उन्होंने दिए 500 करोड़ रुपए दिए अनुदान के गौशालाओं को, हमने 3000 करोड़ रुपए दिए अनुदान में। लंबीडों में गाय मर गई, हमने 40,000 रुपए दे रहे हैं प्रति गाय को, दे दिए हमने। कितने राज्यों दिए हैं? और बीमा करें आगे भी 2 पशुओं का। और अभी गोधन योजना लेके आए जो कि गाय फिरे नहीं गलियों के अंदर आवारा पशु के रूप में। ये इसी बात पर मैं आने वाला था। इस चुनाव में आप कुछ आश्वासन दे रहे हैं, बीजेपी आश्वासन दे रही है। बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो निकाला है, आपने अपने 7 गारंटी दिए हैं। बीजेपी कह रही है वो अब सिलेंडर देगी 450 रुपए में, आप कह रहे हैं 500 रुपए में देंगे। आपने कहा है कि हर परिवार की जो महिला है उसको हर साल 10,000 रुपए मिलेंगे। बीजेपी कह रही है किसी भी घर में बेटी का जन्म होता है हम 2 लाख रुपए का बॉन्ड शुरू करेंगे। आप किसानों के लिए कुछ करते हैं, वो कह रहे हैं हम प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना दुगना करेंगे। तो एक तरह से कंपटीशन हो गई है। आयुष्मान भारत सरकार करती है, आप चिरंजीवी करते हैं हेल्थ इंश्योरेंस। हर तरह से एक फ्रीबीज की एक दौड़ बन गई है। आपके गारंटीज, उनके गारंटीज, कौन विश्वास, किस पे भी विश्वास रखें? विश्वास हमारे ऊपर होगा, क्योंकि हमने 5 साल सरकार चलाई है। जो कहा है वो करके दिखाया है। 10 गारंटी दी हम लोगों ने महंगे राज शहरों के अंदर, महंगाई को देखते हुए। तो आपको आश्चर्य होगा, 1 करोड़ 80 लाख परिवार आए कैंपों में लेने के लिए। 1 करोड़ 85 लाख के लगभग कार्ड मिले लोगों को, और वो इम्प्लीमेंट हो गया गांव-गांव के अंदर। 25 लाख का बीमा हेल्थ का, वो इम्प्लीमेंट हो गया। तो आप सोच सकते हैं विश्वास किस पे करेंगे? प्रधानमंत्री कहते हैं ये रेवड़ी है, ये जो सरकारें देती है, पूरी सरकार की एक्सचेकर बैंकरप्ट हो रही है। राजस्थान का फिस्कल डेफिसिट बढ़ रहा है, 5.8 तक पहुंच गया था, 23 पे अभी भी 22 पे अभी भी 4% है। कि इन सब स्कीम से कुछ नहीं होगा, सरकार की तिजोरी खत्म हो जाएगी, ये रेवड़ी कल्चर है। वो क्या बांट रहे हैं? अगर वो हमें रेवड़ी कल्चर कह रहे हैं तो उनकी पार्टी राजस्थान में क्या कर रही है, दिल्ली में क्या कर रही है? उनको रेवड़ी नहीं कहेंगे क्या? वो उनकी बात में कोई दम नहीं है, चुनावी जुमले बोलते खाली। उन्होंने बड़े बड़े मैनिफेस्टो में वादे किए हैं लोगों के सामने, जैसे मैंने कहा किसान सम्मान योजना दुगना करनी है, हम महिलाओं के लिए करेंगे, वो करेंगे। तो दोनों तरफ से एक तरह से ये हो रहा है कि आपके वादे उनके वादे। अगर आप देखेंगे कि जब से हमने गारंटी देना शुरू किया है, प्रधानमंत्री के मुंह पे गारंटी शब्द आ गया है। जब से गारंटी आपने का शब्द यूज किया है, इतनी बातें छोड़िए। प्राइम मिनिस्टर खाली भड़काने वाला काम कर रहे हैं राजस्थान के अंदर, जो नहीं करना चाहता हूँ। जिस लैंग्वेज में करें वो अस्वीकार्य हम लोगों को है। बिल्कुल ऐसी लैंग्वेज काम नहीं लेनी चाहिए प्राइम मिनिस्टर को, क्योंकि उसे लोग भड़क सकते हैं, आग लग सकती है। ये मेरा आरोप है उनके ऊपर। आप जो भाषा काम ले रहे हो, यहाँ की सरकार की सहानुभूति आतंकवादियों के साथ में है, और यहाँ की कांग्रेस जो है इस प्रकार राजस्थान को बर्बाद करके छोड़ेगी। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, अगर कोई सरकार हो, हमारी हो या किसी पार्टी की हो, उसकी मिली भगत या सहानुभूति आतंकवादियों के साथ में है, उस सरकार को केंद्र को बर्खास्त क्यों नहीं कर देना चाहिए? ये आप चैलेंज दे रहे हैं एक तरह से। हमारी सरकार बर्खास्त कर दे। वो अगर आतंकवादियों की सहानुभूति रखते हैं, हमें क्या हक है सत्ता में रहने का? एक आपकी स्कीम का जिक्र बार बार होता है, चिरंजीवी स्कीम। क्या आपको लगता है कि ये स्कीम जिस तरह से मोदी जी ने आयुष्मान भारत के जरिए एक तरह से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के जरिए अपनी पहचान बना दी थी, क्या आप इस पर चुनाव लड़ रहे हैं कि ये चिरंजीवी स्कीम पर लड़ रहे हैं, या क्या ये आपकी टिकट आप समझते हैं? देखिए, सत्ता के लिए प्राइम मिनिस्टर की जो स्कीम है, उन सब का मुकाबला करें तो राजस्थान बेटर स्कीम है। आप कह रहे हैं राजस्थान मॉडल इज बेटर देन गुजरात मॉडल? गुजरात मॉडल नहीं, दिल्ली का मॉडल। दिल्ली का मॉडल। आप एक तरह से चैलेंज दे रहे हैं प्रधानमंत्री को कि वेलफेयर पे अपना मॉडल रखिए, मेरा मॉडल रखिए। और बताइए आप, उनका 5 लाख का बीमा है आयुष्मान भारत का, वो भी लोगों को पता नहीं है। वो खाली ऐसे जो सर्वे हुआ था,
यूपी गवर्नमेंट उन तक सीमित है वो, और कई राज्यों में 20%, कई राज्यों में 25% तक सीमित है कैटेगरी, NFL वालों को कैटेगरी बना दी। हमारा राज्य एकमात्र ऐसा राज्य है पूरे राजस्थान के वासियों के लिए है, गरीब अमीर कोई हो भले ही। तो आप एक तरह से चिरंजीवी। 2 दिन का है फर्क, पूरे प्रदेशवासियों के बीमा है हमारा हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। यही तो मैं कह रहा हूँ आपको कि आम लोग समझ नहीं पाते इन बातों को, क्योंकि परसेप्शन बन गई थी कि ये जो कांग्रेस जो है एक दूसरे की लड़ाई की वजह से ये चुनाव हारेगी। अब परसेप्शन कुछ बन रहा अलग बात है, काम जो हमने किया है स्वास्थ्य के अंदर, शिक्षा के अंदर, कोई सोच नहीं सकता। दुर्घटना बीमा कर दिया हम लोगों ने 10 लाख का। पर आप मानते हैं कि खास करके महिला और युवाओं को एक तरफ करने के लिए हर पार्टी आप कई गारंटीज दे रही, ये नया पॉलिटिक्स बन गया है। आप इतने सालों से हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ इस बार हर पार्टी करी है, हम ये करेंगे युवाओं के लिए, हम वो करेंगे महिलाओं के लिए, एक बैटल बन गया है। देखिए, तो पिछले अरसे से जब से यूपी के अंदर चुनाव हुए थे, इन्होंने किट बांटे थे, मोबाइल फोन बांटे थे, तो शुरुआत तो बीजेपी ने करी है। बीजेपी ने करी है तो जवाब तो देना पड़ेगा सब पार्टियों को। सर, आपने कहा आप चाहते हैं वोट अपने काम पर। एक आरोप लगता है कि पहले 2 साल आपके गए सचिन पायलट की बगावत को संभालने के लिए, उसके बाद कोविड हुआ, उसके बाद ये चर्चा हुई कि अशोक गहलोत राजस्थान मुख्यमंत्री के बजाय अब कांग्रेस के अध्यक्षा बनेंगे दिल्ली में, और अब पिछले 1 साल में आपने लगातार प्रयास किया है कि चुनाव आ रहे हैं, वोटर को लुभाना। कैसे देखते हैं कि क्या आप मानते हैं ये जो बड़ा सवाल बार बार उठता है कि कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई की वजह से कांग्रेस को नुकसान पहुंचा पिछले 5 सालों में, पायलट बनाम गहलोत? देखिए, वो एक अनफॉर्चुनेट एपिसोड था जो हो गया, उस पर मैं कोई चर्चा नहीं करना चाहता। आपने वो छोड़ दिया है, क्योंकि 1 साल पहले आपने वर्ड्स यूज के गद्दार हैं, ये है वो है। अब मैं देखता हूँ फोटो आप और सचिन पायलट राहुल गांधी के साथ है, ये तो 4 साल पहले होना चाहिए था। कहना मैं, वो एक अनफॉर्चुनेट एपिसोड था जो बीजेपी का प्लान था, षड्यंत्र था उनका, जैसे उन्होंने मध्य प्रदेश में किया, महाराष्ट्र में किया, कर्नाटक में किया, वही चाल उनकी याद थी। उसमें वो कामयाब नहीं हुए, हमने कामयाब होने नहीं दिया। पर ये आप लोगों की आपसी लड़ाई थी ना, आप नहीं चाहते थे कि सचिन पायलट आगे बढ़े। बीजेपी का पिक्चर में आगे फिर उन्होंने क्यों षड्यंत्र किया? उन्होंने उसका फायदा उठाया आप दोनों की लड़ाई का। हमारी कोई लड़ाई नहीं थी, उन्होंने लड़ाने का काम किया। ये मुझे बताइए कि आप कह रहे हैं कि वो क्लोज चैप्टर है, चलिए मान लिया, क्या ये भी क्लोज चैप्टर है कि अशोक गहलोत को कांग्रेस अध्यक्षा ने, सोनिया गांधी तब थी, कि आइए दिल्ली आप अध्यक्ष बनिए, और एक बगावत हो गई है और आपने कहा नहीं मैं नहीं आऊंगा? एक क्लैरिफाई कर दीजिए। ये बिल्कुल बात सुनिए, बिल्कुल गलत बात है। वो पद बहुत गरिमामय पद था, मुख्यमंत्री से 100 गुना ज्यादा पद में महत्वपूर्ण मानता हूँ, पद को मानता हूँ। वो एक रिएक्शन हो गया कि पता नहीं आज जाएंगे प्रस्ताव। तैयार थे जाने के लिए? मैं तैयार था, बिल्कुल। आपकी पार्टी तैयार नहीं थी, आपके एमएलए तैयार नहीं थे? हाँ, एग्जैक्टली वो उनके अंदर दिमाग में रहा कि वो या ये नहीं है सही कि आप चाहते थे कि पायलट ना बने इसलिए आप यहाँ रुक गए? मैं कुछ नहीं चाहता था, जो कुछ चाहते नहीं चाहते थे वो एमएलए ने खुद ने स्पॉन्टेनियस रिएक्शन इतना भयंकर हो गया, उसको हमको रोक नहीं पाए थे, इसलिए मैंने माफी मांगी जाके मैडम से। फिर आगे का देखते हैं अशोक जी, आपने कितने 11-12 चुनाव लड़े हैं, 5 बार एमएलए, 5 बार आप 3 बार मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री रहे। अब अशोक गहलोत किस तरह से अपनी राजनीति देखते हैं? क्या अशोक गहलोत का फ्यूचर क्या है? देखिए, मेरा फ्यूचर तो कांग्रेस हाईकमांड के हाथ में है। जो भी वो चाहेंगे वो जिम्मेदारी मुझे मंजूर है। कोई पद मुझे बहुत मिल चुके हैं हिंदुस्तान में, मैं बहुत ही संतुष्ट नहीं, अति संतुष्ट पॉलिटिशियन में हूँ। मैं अति संतुष्ट पॉलिटिशियन में हूँ। कोई एम्बिशन नहीं, कोई महत्वाकांक्षा नहीं, अति संतुष्ट पॉलिटिशियन में हूँ मैं। मैंने 3 बार केंद्रीय मंत्री, 3 बार मुख्यमंत्री, 3 बार पीसीसी प्रेसिडेंट और 3 बार एआईसीसी के महामंत्री, 5 बार मेंबर पार्लियामेंट, 5 बार एमएलए। सब कुछ मैं संतुष्ट नहीं, अति संतुष्ट हूँ।
तो मेरे लिए क्या है, पार्टी डैमेज नहीं होनी चाहिए मेरे कारण से। जो पार्टी मुझे इशारा करेगी वो मुझे मंजूर होगा। मैं फिर से वो जहां हमने शुरुआत की थी वहीं करता हूं। 2003 में आप 98 आप मुख्यमंत्री बनते हैं, 2003 का चुनाव आप हारते हैं, आप फिर से 2008 में बनते हैं, 13 का हारते। ये जो अशोक गहलोत जी पर आरोप लगाया जाता है कि आप ब्यूरोक्रेट्स की बहुत सुनते हैं, नेताओं की कम, इसलिए आप चुनाव नहीं जीत पाते हैं। क्या अशोक गहलोत मास लीडर उस तरह के हैं जो चुनाव जीत सकते हैं? चुनाव जीतना अशोक गहलोत के लिए इतना आसान नहीं होता, क्योंकि आप अफसर ब्यूरोक्रेट्स पर ज्यादा भरोसा करते हैं जब आप सरकार में आते हैं। ये आरोप गलत है, आरोप गलत है। जितना फ्रेंडली मैं हूँ हमारे पब्लिक से भी या कार्यकर्ताओं से कोई नहीं हो सकता है। मुझे बहुत प्यार मिलता है उन लोगों का और मुझे अच्छा भी लगता है। ये तो खाली जब चुनाव हार जाते हैं तो कोई भी कुछ भी कह सकता है, उसका अधिकार बन जाता है, जैसे आप कह रहे हो। सर, एक ओबीसी फैक्टर है। राहुल गांधी आते हैं, कहते हैं कास्ट सेंसस करेंगे, मध्य प्रदेश में भी कह रहे हैं, राजस्थान में भी कह रहे हैं। आप ओबीसी समुदाय से आते हैं, एक तरह से आप चेहरा बन गए हैं कांग्रेस ओबीसी, ये जो पॉलिसी बन गई है। क्या आप समझते हैं, प्रधानमंत्री कहते हैं इस एक ही समाज होना चाहिए, गरीब, इसमें कोई ओबीसी कुछ नहीं होना चाहिए, इससे हिंदू समाज बढ़ जाएगा। क्या आप समझते हैं ओबीसी की राजनीति अब राजस्थान में है, जाति की राजनीति हर राज्य में है, खास करके राजस्थान जैसे राज्य में? नहीं, प्रधानमंत्री खुद ही कहते मैं ओबीसी का हूँ, मैं गरीब हूँ। खुद ही उन्होंने शुरुआत करी गुजरात के अंदर, मैंने खुद सुना उनको, तो वो कैसे ऐसी बातें कर रहे हैं। राहुल गांधी जी कहते हैं कि कास्ट सेंसस होना चाहिए, ये मांग हर वर्ग की है देश के अंदर। बीजेपी भी इसका विरोध नहीं कर पा रही है। पूरे देश के अंदर कास्ट सेंसस की मांग है। आप करवाएंगे कास्ट सेंसस अगर आपकी सरकार? हमने आदेश दे दिए, यहाँ पे तो हमने आदेश जारी भी कर दिया है। आपकी रिलेशनशिप राहुल गांधी प्रियंका गांधी वाड्रा से कैसी है? क्योंकि सवाल बार बार उठते हैं, इज अशोक गहलोत फ्रेंडली विद राहुल गांधी या नहीं, या राहुल गांधी की एक नई जनरेशन आ रही है, अशोक गहलोत पुराने जनरेशन के, अहमद पटेल, सोनिया गांधी एक अलग जनरेशन के हैं। कोई जनरेशनल वॉर है? मेरे साथ तो कोई है नहीं। मेरे साथ तो संबंध जो है वो, मैंने एक बात कही थी, विनोबा भावे की एक पुस्तक है गीता माता, उसमें वो लिखते हैं मेरा और गीता माता का संबंध जो है वो तर्क से परे है, नो आर्ग्यूमेंट, तर्क से परे है। तो मेरा और गांधी परिवार रिश्ता है वो तर्क से परे है। तो अगर चुनाव आप जीतते हैं तो मुख्यमंत्री आप ही, ये तो आप गारंटी दे सकते हैं। आपने 7 गारंटी दिए हैं, लोग जानना चाहते हैं गारंटी ये भी है क्या कि अगर वो वोट करते तो अशोक गहलोत ही बनेंगे ना मुख्यमंत्री, कोई और तो नहीं बनेगा? देखिए, अभी जो हालात देश में बने हुए हैं, आप बिलीव नहीं करेंगे, अब हमें कोई पद की चिंता नहीं होनी चाहिए, किसी को भी चिंता होनी चाहिए कि डेमोक्रेसी कहाँ जा रही है, संविधान की धज्जियां उड़ रही है, देश की दिशा में जा रहा है, कोई नहीं जानता, किस दिशा में जाएगा कोई नहीं जानता। किस दिशा में जा रहा है? प्रधानमंत्री कहते हैं तो हम अमृतकाल आ रहा है देश में, उनके लिए अमृतकाल आ रहा होगा, तो मुझे बहुत कुछ दिख रहा है। क्या है, क्या आपको क्या चिंता लगी हुई है कि देश का होगा क्या? क्यों? जिस प्रकार से धर्म के नाम पर राजनीति हो रही है देश के अंदर, आज कोई पत्रकार, साहित्यकार, लेखक या कोई राजनीतिज्ञ विरोध में बोल जाए, आलोचना करते सरकार की, आप जेल जाओ, आप देशद्रोही हो। जिस देश में ये स्थिति बन जाती है, कितने बेचारे लोग एक साल जेल में बैठ के आ रहे हैं बाहर, क्या हो रहा है देश के अंदर? चिंता वो नहीं चाहिए। अब क्या पद की चिंता करें हम लोग, पद बहुत कुछ मिल गया है। इन बातों के लिए चैलेंज जो हमारे सामने है, उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी पार्टी क्या कर सकती है, मेरी हाईकमान क्या कर सकती है, उनका हम साथ देंगे। आप मुझे गारंटी ये नहीं दे रहे हैं राजस्थान की जनता को कि अगर वो कांग्रेस को वोट दे तो क्या अशोक गहलोत ही बनेंगे ना मुख्यमंत्री, या कोई और है? ये फैसला हाईकमान करेगी। ये फैसला हाईकमान पे आपने छोड़ दिया है। और अगर आप हार जाए ये चुनाव तो फिर अशोक गहलोत जी का क्या, फिर क्या भविष्य? अभी आप बताए, आपको जो मैंने अभी बताया था कि अभी हम क्या कर सकते हैं देश के लिए, चिंता वो होनी चाहिए हमें। हारना, जीतना, पद लेना, पद नहीं मिलना, ये सब बातें सेकेंडरी मेरे लिए। क्योंकि ये चुनाव कई लोग समझ रहे हैं सेमीफाइनल है,
फाइनल 2024 में है, आम चुनाव होंगे, क्या आप मानते हैं एडवांटेज मोदी आम चुनाव में, ये आप मानते हैं? मोदी जी का और बहुत नीचे जा रहा है, ग्राफ नीचे जा रहा है, कोई उसकी क्या कई लोग पिछली बार भी ये कहा था आप 2018 में जीते चुनाव राजस्थान में, पर 19 में 25 के 25 सीटें बीजेपी के पास गई। उस वक्त में उनका और था, उस वक्त तक अभी इस बार काफी फर्क पड़ा है फर्क, कोई फर्क पड़ा है, फर्क पड़ा, लोग समझने लग गए कि भाई ये हो क्या रहा देश के अंदर। ये ईडी, इनकम, सीबीआई, मैं फिर कहूँगा आपको, तीनों प्रीमियर एजेंसी हमारी है, तीनों क्रेडिबिलिटी रहनी चाहिए, वरना देश की अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा नुकसान होगा। इकोनॉमिक ऑफेंडर भी खुले छूटते घूमते रहेंगे, रेवेन्यू कम होगी आपकी। हमारे लिए जरूरी तीनों एजेंसियां इम्पोर्टेंट है, इनकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो रही है, बनी रहनी चाहिए, ये हमारा ख्वाहिश है। सर, हम कुछ क्षणों में लैंड करने वाले, एक सवाल पूछना चाहिए कि सुना है कि आप बड़े हिंदी पुराने गानों के शौकीन हैं, या आप गाते हैं या सुनते हैं या कोई आपका फेवरेट गाना है? अशोक गहलोत जी जब अपने साथ कोई समर्थक नहीं, फॉलोअर नहीं, अपने साथ आराम से बैठे हुए घर में परिवार के साथ, तो क्या गाना गाते हैं? कोई तो होगा आपका फेवरेट है। देखिए वो तो मैं तो खाली ओल्ड सॉन्ग जो है यूट्यूब में आते रहते हैं, सुनते रहते हैं। कोई तो होगा फेवरेट? फेवरेट कुछ नहीं है, सब फेवरेट है। किशोर कुमार या मोहम्मद रफी? फेवरेट, सब फेवरेट है। इतना मैं लता मंगेशकर या आशा भोसले? मैं कभी गहराई में गया ही नहीं, बस खाली मैं ओल्ड सॉन्ग सुनता हूँ, ये मुझे शौक जरूर है, कि फिल्में देख नहीं पाते कभी। मैं दर्शकों को इसलिए कह रहा हूँ कि अशोक गहलोत की कौन सी बात है जो हम नहीं जानते हैं, जो कोई ऐसी बात होगी जो जनता नहीं जानती है, जो जानना चाहिए? यही बात देख लीजिए, क्योंकि आपकी जर्नी बहुत, आप एक छोटे से परिवार से आए जोधपुर में और आप इतने बड़े मुकाम तक पहुंच गए। क्या सबसे बड़ा चैलेंज रहा है इतने सालों में आपके साथ? कुछ नहीं, बस काम करने धुन थी तो सारे प्रायोरिटी पीछे रह गई, और पॉलिटिकल एक्टिविटी या सेवा भाव या कंस्ट्रक्टिव काम करने का रुचि थी बचपन से ही। मैं बचपन से ही, जब बांग्लादेश से वार हुआ था, तो मैं बॉर्डर पे गया था, वहाँ पे रह के आया, वहाँ पे शरणार्थी शिविरों में काम किया हम लोगों ने, सफाई का काम किया, जितने ही सोशल वर्क मैंने किए बचपन में। ये सेवाग्राम आश्रम में रहा मैं 15 दिन तक। एक तरुण साथी सेना हुआ करती थी, गांधी पीस फाउंडेशन की एक ब्रांच, उसमें मैंने कैंपों में अटेंड किए। तो बचपन मेरा सोशल वर्क का एक फील्ड रहा है। 24/7 नेता, जिंदगी भर नेता रहेंगे, नो टायर्ड नो रिटायर्ड, यही है जिंदगी में, अंतिम सांस तक सेवा करने का संकल्प है, बस समझ लीजिए। मैं एक गाना आपको सुनाता हूँ, आप उसके जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं, वो याद है कि नहीं? हाँ, तो और एक गाना, मुसाफिर हूँ यारो, न घर है। आप मुझे ज्यादा गाना याद रखते हो? अरे नहीं सर, मैं भी आप ही की तरह हूँ, बाथरूम सिंगर हूँ। पर अशोक जी, आपने हमसे बात की, आप पूरे राजस्थान का दौरा कर रहे हैं, ये चुनाव आपके नाम पे लड़ा जा रहा है, और इसी वजह से हम आपके साथ हैं, क्योंकि जहां भी जा रहे हैं आपका चेहरा दिख रहा है। तो कांग्रेस ने अपने सारे अंडे आपके साथ रख दिए इस बार, कि अशोक गहलोत आप पर भरोसा है। देखिए, पब्लिक का प्यार, उनकी मोहब्बत, उनके विश्वास एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेरे पास है, मेरे साथ है, इसमें कोई दो राय नहीं। आप कहीं जाओगे, राजस्थान की गलियों में जाओगे, गांव में जाओगे, ढाणे में जाओगे, और है कि नहीं, कुछ मेरे प्रति प्यार बहुत है, विश्वास बहुत है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। चलिए, हम देखते हैं ये विश्वास जो आप कह रहे हैं, जो काम की बात आप कह रहे हैं, वो कितना जनता के बीच तक जाती है और जनता क्या चुनती है, ये हम जनता जनार्दन पर छोड़ते हैं। बट थैंक यू वेरी मच। अशोक गहलोत, राजस्थान चीफ मिनिस्टर, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ ये खास बातचीत। राजदीप सरदेसाई, आज तक और इंडिया टुडे के लिए। Okay, it isn't just Ashok Gehlot on the campaign trail here in Udaipur. He was actually campaigning here with Priyanka Gandhi Vadra. This is an interesting development because remember,
A year ago, Ashok Gehlot had virtually been accused of revolting against the Gandhi family, refusing to accept the Congress president's post, choosing to stay on as Rajasthan Chief Minister. Priyanka Gandhi Vadra is being used extensively by the Congress in these 2023 elections, particularly with an eye on the woman vote. We spoke to her on that and also her taking on Jyotiraditya Scindia. That's become a bit of a controversy. Listen in to Priyanka Gandhi Vadra as we caught up with her on the campaign trail here in Udaipur. ये बताइए हमें प्रियंका, आप मध्य प्रदेश और बहुत फोकस कर रही हैं इस चुनाव में, कहीं न कहीं पर ज्यादातर मैं देख रहा हूँ इन दोनों राज्यों में आपने बहुत फोकस किया। किस तरह से आप ये चुनाव देख रही हैं? कि क्या आप वाकई मानती है कि कांग्रेस इन राज्यों में जीत हासिल कर सकती है या कांग्रेस बैकफुट पर है? मैं बिल्कुल मानती हूँ कि जीत हासिल होगी और हमारा काम है लड़ना। हम अपने सिद्धांतों की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। जनता त्रस्त है, परेशान है, जहाँ जहाँ इनकी सरकार है किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, रोजगार नहीं, शिक्षा के माध्यम नहीं है, कुछ नया नहीं किया है, नया अस्पताल नहीं की सरकार है ना राजस्थान, जहाँ इनकी सरकार है। मेरी बातों को मत पलटिए, मैंने कहा जहाँ जहाँ इनकी सरकार है ऐसा हो रहा है, लोग परेशान है, तो क्यों नहीं बदलाव लाएंगे? जरूर लाएंगे। इस चुनाव में हम महिला वोट बैंक पर बहुत देख रहे हैं, हर पार्टी कई कई वादे करने के लिए। मैं बहुत समय से ये कह रही हूँ और मुझे बहुत खुशी है कि सारे राजनीतिक दल अब इस बात को समझने लगे हैं कि महिलाएं एकजुट हो जाए तो महिला बड़ी शक्ति है देश की, 50% है, उनको अपना अधिकार भी मिलना चाहिए, उनको हक मिलना चाहिए और हर राजनीतिक दल को उनके लिए लड़ना पड़ेगा, उनको नकारा नहीं जा सकता। पर ये यूपी में नहीं चला, ये आपकी जो महिलाओं के लिए जो आपने किया था वो यूपी में नहीं चला, तो जो नई क्रांतिकारी चीजें होती हैं उनको समय लगता है चलने में और अच्छा है, मुझे तो खुशी इस बात की और गर्व भी है इस बात की कि हम अलग से महिलाओं के लिए एक अलग घोषणा पत्र भी बनाया, तो मुझे बहुत खुशी है कि हमने एक पहल ली और उसके बाद से बहुत जागरूकता आ गई है महिलाओं में भी और राजनीतिक दलों में भी कि महिलाओं को नकारा नहीं जा सकता। तो मुझे बहुत खुशी है कि हर चुनाव में अब से महिलाओं का बहुत बड़ा श्रेय होगा। जैसे आप चुनाव में पड़ गई है, कंट्रोवर्सी भी आ गई है मध्य प्रदेश में, आप बनाम ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो आपने बयान दिया, शिवराज सिंह चौहान से लेकर हर नेता ने आप पर आरोप लगाया कि आपने चुनाव पर्सनल कर दिया, आपने सिंधिया को टारगेट कर दिया। सुबह से शाम तक तो हमें गालियां देते रहते हैं, हमारे परिवार के बच्चों को भी नहीं छोड़ा, बुजुर्गों को, माँ बाप सबको सुबह से शाम तक उल्टा सीधा कहते रहते हैं। हम तो कोई रोते नहीं है भाई इन बातों के, हम समझते हैं सार्वजनिक जीवन है, सुनना पड़ता है, लड़ना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। अब ये भी थोड़ी हिम्मत करें। तो आप भी पर्सनल कर रही हैं अब चुनाव। पर्सनल क्या कहा? मैंने कहा कि महान अभिनेता है, इसमें पर्सनल नहीं, आपने कहा उनका हाइट छोटा है, ये सब आपने जैसे ही उठाया, उनका अहंकार बढ़ा है, अहंकार बढ़ा और हाइट छोटा है, तो वो बड़े गुस्से में हो गए, तो उन्होंने कहा चुनाव का मुद्दा नहीं है, ये हाथी चीज है और चुनाव मतलब भाषण के बीच में कुछ ऐसी चीजें ठीक है। चुनाव के मुद्दे क्या है? बेरोजगारी, महंगाई। जिस तरह से मध्य प्रदेश की सरकार ने 21 रोजगार दिए 3 सालों में, 21 रोजगार, शर्म आनी चाहिए इनको। इन्हीं मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाए, इन्हीं पर बात। आखिरी सवाल, आपका रोल क्या है? आखिरी सवाल, आपका रोल फिर क्या है? राहुल गांधी प्रचार कर रहे हैं, तो आपका क्या रोल है? मेरा रोल है अपनी पार्टी के सिद्धांतों के लिए लड़ना जी, अपने देश के संविधान के सिद्धांतों के लिए लड़ना, जो गरीब हैं, जो किसान हैं, जो महिलाएं हैं, जिसके जीवन में मुश्किलें हैं, संघर्ष है, उनके साथ खड़ा हो। क्योंकि ये सवाल उठ रहा है, आप 2024 का चुनाव अब लड़ेंगी कि प्रियंका गांधी केवल स्टार कैंपेनर रहेंगी? तो बहुत दूर जा रहे हैं। नहीं, बहुत दूर नहीं, 6 महीने में, 4 महीने में चुनाव आ रहे हैं, आप केवल स्टार कैंपेनर है या किस तरह से? इनको मेरे ख्याल से कितने 20 सालों से देख रही हूँ, उससे ज्यादा
20 सालों से यही है इनका कि कहीं से अच्छा, आप अशोक गहलोत जी के साथ है, अगर यहाँ चुनाव कांग्रेस जीतती है तो क्या अशोक गहलोत जी ही मुख्यमंत्री रहेंगे? इस सवाल का जवाब मैं थोड़ी दे सकती हूँ। तो कौन ये हाईकमांड है? कौन? खरगे जी है और कौन है? गांधी परिवार या खरगे जी? क्या कह रहे हैं आप? कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, खरगे जी है, हम सब उनकी सुनते हैं। प्रियंका जी, आप अब जैसे आपने कहा 20 साल से आप पूछ रही हैं, आप में आप इस तरफ आइए सर। तो आखिर में मैं उस तरफ अच्छा, आप जब अच्छा आखिरी सवाल, आप ये कैंपेन पर जाती हैं, आपने सबसे बड़ी बात क्या सीखी है? बदलाव क्या आया है प्रियंका गांधी में इतने सालों में? आपने कहा 20 साल से मैं यही सवाल पूछता हूं, आप में क्या बदलाव आया है? तो आप बताएंगे ना। नहीं, ये आप मुझे बताइए कि आप क्या बदलाव नजर करती हैं? आप ज्यादा मैंने यूपी के चुनाव से और वहाँ पे काम करने से बहुत सीखा। सबसे बड़ी चीज क्या सीखी आपने? एक राजनीति की जो एक वास्तविकता है, जो जमीनी चीजें हैं, वो बहुत सीखी मैंने। मोदी जी वहां है, क्या कहेंगी आप उनको? कहाँ? अगर कैमरा पर अगर आप कुछ उनको कहना चाहें, क्या कहेंगी? मोदी जी और बीजेपी को आज आप क्या कहेंगी? वो कहते हैं प्रियंका गांधी जी केवल चुनाव के टाइम पे नजर आती है, बाकी नजर नहीं आती, क्या कहेंगे उनको? मतलब उसका जवाब दूं हाँ, मोदी जी को? हाँ, बीजेपी को जो धारणा है, मेरी धारणा तो नहीं है। आपकी क्या धारणा है? मेरी धारणा ये है कि मैं काम करती रहती हूँ, सुबह से शाम तक काम करती हूँ, रोज करती हूँ, 24/7 पॉलिटिक्स। दिखती हूँ, कभी कभी ज्यादा दिखती हूँ टीवी पे, कभी कभी कम दिखती हूँ। पर आप करती रहेंगी? क्यों नहीं, बिल्कुल। एज अ स्टार कैंपेनर आप भी मुझे 20 सालों से देख रहे हैं। मैंने कहा 2024 का चुनाव एक बार फिर पूछता हूँ, रायबरेली से लड़ेंगी? हाँ? रायबरेली से लड़ेंगी आप? वो आप देखेंगे कि मैं क्या करूंगी। सचिन पायलट, अशोक गहलोत, विल दे फाइट टुगेदर? क्या वो एकजुट होकर लड़ेंगे? प्रियंका होकर लड़ रहे हैं, एकजुट होकर लड़ रहे हैं, हमारी पूरी पार्टी एकजुट होकर लड़ रही है। क्या आपने उनको साथ लाने की कोशिश की थी? इस चुनाव में राजस्थान में बीजेपी एकदम बिखरी हुई है और कांग्रेस एकजुट है? कांग्रेस बिल्कुल एकजुट है। चलिए अशोक जी, उस पर आपके चेहरे पर भी मुस्कान आ गई, बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपको चित्तौड़गढ़ में मिलेंगे एट द रैली। थैंक यू प्रियंका जी, अशोक गहलोत जी, बाय फॉर नाउ। Okay, let's shift gears and focus from the campaign trail to what's been happening in the BJP camp. Today, Prime Minister Narendra Modi, along with the BJP President JP Nadda, hosted journalists for a Diwali Milan in the national capital. And the Prime Minister expressed a concern he had in his interaction with the journalists. The concern is over deep fake videos that are plaguing the internet. The Prime Minister particularly was referring to one video of his, which has come up, allegedly doing Garba, which was a deep fake video. What's the PM's solution to it? Remember, India Today has been raising this issue for a few days now. Take a look. Imagine in an election season, Virat Kohli's picture being replaced by a politician. There you go. You now have a picture of Virat Kohli sitting and working in our newsroom. India Today's deep dive into digital sorcery. A journey into the realm of deception. And put words in his mouth. So Our in-house experts took center stage on Thursday, revealing the dark arts of deepfakes. We exposed how faces can be swapped, voices mimicked, and reality manipulated with a few clicks. this free and customizable tool can be used and accessed by any developer in the world. I will just sit in front of computer and the software is going to look at me and describe what I'm doing in that language, tone and voice of none other than David Attenborough. The image depicts a man sitting inside a room concentrating on reading a book with an orange and white cover. The man is wearing glasses and has a neatly groomed moustache. He is dressed in a dark jacket over a lighter shirt. The room's background appears simple, with plain walls and no discernible decorations. ChatGPT के लोग मिले थे तो मैंने उनको कहा था. A day later, Prime Minister Narendra Modi sounded the alarm. The Prime Minister described deepfakes as a potential threat to the Indian system. जैसे सिगरेट पे आता है, इट्स कैंसरस. पीना तुम्हारी मर्जी, लेकिन लिखा हुआ रहता है. ये हेल्थ के लिए हैजार्ड है, ऐसा लिखा हुआ है. जो भी चैट जीपीटी का उपयोग करता है या कोई इस प्रकार से एआई का उपयोग करता है, तो वहां एक आना चाहिए, इट्स अ डीप फेक. फिर उसको देखें, आनंद करे, जो करना है करे, लेकिन उस पर आना चाहिए.
The Prime Minister called upon both citizens and the media to stay vigilant against the misuse of artificial intelligence for deepfakes. The Prime Minister even cited a video purportedly featuring him performing Garba. A seemingly real moment that turned out to be a meticulously crafted illusion. The man in the viral video was not Prime Minister Modi, but a doppelganger. Actor Vikas Mahante participating at a Diwali event in London. इनमें से किस मुख्यमंत्री को उनकी झूठी घोषणाओं के कारण घोषणा मशीन कहा जाता है? As the menace of deepfakes continues to grow, the Prime Minister's call for vigilance underscores the importance of staying one step ahead of the illusions that threaten Indian democracy. सबको 1500 रुपए महीने और Bureau Report, India Today. फिर इस बार तो छोड़ो, अगली बार भी हमारा जीतना नामुमकिन हो. You are with the news today, and we are here in Udaipur tracking all the election heat and dust in Rajasthan, the next big battleground state that goes to the polls in a week from now. But I want to turn at the moment to a ground report that we have for you from the tunnel collapse, the under construction tunnel collapse in Uttarakhand, where 40 workers remain trapped. It's day 6 of the rescue operations, and the rescue operation has been tediously slow. The hope is, of course, that eventually the workers will be rescued. It's our ground report. 6 days and counting. Over 150 hours and 40 workers remain trapped in a tunnel in Uttarkashi. Advanced auger drilling machines deployed. Police rescue teams conducting mock drills. And trapped workers still holding on to hope. As the rescue operations in Uttarkashi's Silkyara tunnel continue, the rescuers have made significant headway overnight in the ongoing operation to free 40 trapped workers. On Friday, rescue teams inserted 5 pipes, each with a diameter of 900 millimeters and a length of 6 meters, into the debris. Officials have informed that a further 30 to 40 meters of debris has to be cleared to reach the trapped workers. टेक्निकल मिशन है ये. अंदर जो डेब्रीज है उसके अंदर कुछ भी हो सकता है. स्टील रिप्स भी हो सकती है, रॉक बोल्ट्स हो सकते हैं, कोई मशीन हो सकती है, कोई बूमर हो सकता है. तो उसको लेके मैं टाइमलाइन आपको नहीं बता सकता, बट ये बोल सकता हूँ कि एक एक मिनट सब कुछ इम्पोर्टेंट, एक एक सेकंड इम्पोर्टेंट है. और मुख्यमंत्री जी भी इस पे निरंतर अपडेट ले रहे हैं, पल पल की अपडेट ले रहे हैं. तो ऑपरेशन जो है पूरी तरीके से जारी है. On Friday, rescue workers also conducted a mock drill to pull out the trapped workers out of the debris. During this mock drill, a rescue worker goes inside the pipe along with a rope. Other workers hold the rope while the worker goes inside to pull out those stranded. The trapped workers will be pulled out one after another and then taken on a stretcher. Let us tell you that auger drilling machine is using its full capacity. It's a 25-ton machine which is regularly working day and night, and more than 260 personnel are also involved in the rescue operations. Communication meanwhile continues with the trapped workers to monitor their mental health and ensure they don't lose hope. With Ashutosh Mishra and Ankit Sharma in Uttarkashi, Bureau Report, India Today. While we pray for those trapped workers, let's turn to our Get Real India story. It's Chhath Puja season this weekend, and all trains are headed towards Bihar. And not surprisingly, all trains are overcrowded, leading to passengers complaining about simply not being able to actually move even in the trains. Does the Indian Railways have a solution? It's our Get Real India story. हम आपकी सफल, सुखद एवं मंगलमय यात्रा की कामना करते हैं। The yatra for thousands of citizens returning home to celebrate Chhath Puja is anything but sukhad or happy.
यहाँ पर लोग बैठ भी गए हैं, जगह कम है दिखाने के लिए, वॉशरूम है, टॉयलेट है, पर यहाँ मजबूरी है, बच्चे छोटे छोटे खड़े हुए हैं पीछे। Overcrowded trains, chaotic railway stations make the घर का सफर or the journey home quite a suffering. देख सकते हैं छठ के लिए तमाम लोग जा रहे हैं। मैं अंदर जाकर दिखाने की कोशिश करता आपको, लेकिन इस वक्त अंदर जाना भी पॉसिबल नहीं है। आप देखिए ये निकलने का द्वार है और पूरा जैम पैक्ड है। जो वॉशरूम है, ये शायद ये वॉशरूम है, ये टॉयलेट है। इधर आइए आप, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए आप, ये टॉयलेट है और यहाँ तक लोग खड़े हैं। मजबूरी का ये आलम है। The challenge starts right from the moment a passenger heads to the railway station. Those who manage to reach the platform have literally to fight their way into the train. Some hang on to the train for their dear life. And some are left stranded at the platform. पूरा फैमिली के साथ में यहाँ से ट्रेन में दिक्कत हो रही है, जाने में बहुत गर्दी है ट्रेन में, यही है परेशानी। आप ट्रेन में चढ़ नहीं पाए ट्रेन में, तो आप फिर कैसे जाएंगे? अभी दूसरा ट्रेन देखते हैं, उसमें देखते हैं, ट्राई करेंगे। Delhi, Lucknow, Surat, cities across parts of the country are witnessing almost the same scenes. छठ के लिए बहुत भीड़ है, इसमें काफी है और ट्रेन लेट से भी चल रही है। In Surat, a stampede erupted as a large crowd of passengers surged towards a special train for Bihar, leaving one person dead and 2 others injured on Saturday. It's a story that repeats itself almost every year during Chhath Puja. And every year Indian Railways is caught on the wrong track. With Samarth Srivastav, Bureau Report, India Today. Okay, that's just about all the time we have on the show today. Remember, this is a big weekend for Indian cricket. It is the World Cup final on Sunday. Let's all hope and pray that our men in blue do us proud. Meanwhile, thanks very much for watching. From Udaipur, this is Rajdeep Sardesai signing off. Thanks for watching. Namaskar. Jai Hind.